Hello, I'm Arviz Dev. Welcome to my channel. Today we're gonna study Chaucer's Poetry, a general prologue. It's the fourth unit of British Poetry, MEG01, IGNOU University. Right? IGNOU, the People's University, you call it. We're gonna study here the fourth important topic of this unit. And the first topic we're gonna study here, the life of Chaucer. The second topic we're gonna study here, Chaucer's Poetry. And the third one, Chaucer's comic version. And fourth one, Chaucer's language and meter. If you have any query, you can call me, WhatsApp me. Number is here on your screen, right? Before this, we will proceed. I have a request for you. If you have not yet subscribed my channel, please subscribe my channel. Press the bell icon to get the instant notification of my all educational videos. And after that, you can also comment, share, and like the video. And the previous video, unit 3rd, you can also find here on the I button. Right? Let's move forward. The life of Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer was born on 340 and died 1400. He was an English poet and author. Widely considered the greatest English poet of the Middle Ages, he is best known for the Canterbury Tale. He has been called the father of English literature, or alternatively, the father of English poetry. He was the first writer to be buried in what has since come to be called Poets' Corner in Westminster Abbey. Chaucer also gained fame as a philosopher and astronomer, composing the scientific treatise on the astrolabe for his 10-year-old son Lewis. He maintained a career in the civil service as a bureaucrat, courtier, diplomat, and member of parliament. Among Chaucer's many other works are the Book of Duchess, the House of Fame, the Legend of Good Woman, and the next we have here Troilus and Cresside, and he is seen as a crucial in legitimating the literary use of Middle English when the dominant literary languages in England were still French and Latin. Let's have a commentary. Chaucer's age we have here, according to the document, 60 years. और इन्हीं 60 years को हम चासर की एज कहते हैं. अब चासर कौन था? The question is here, who was Chaucer? Chaucer एक इंग्लिश पोइट था, इंग्लिश ऑथर था, और उसको हम कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा या अजीम शायर था मिडिल एज का, और उसको कैंटरबरी टेल से जाना जाता है क्योंकि कैंटरबरी टेल उसकी काफी नुमाया एक पोम रही है और इसीलिए उसको जाना जाता है कैंटरबरी टेल से. इसके अलावा भी उसने बहुत सारी पोम्स लिखी, जैसे कि हमारे पास है द बुक ऑफ डचेस है, द हाउस ऑफ फेम है, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है, और हमारा जो है ट्रोलिस और क्रेसाइट है. लेकिन काफी ज्यादा जो पॉपुलर हुई है वो है कैंटरबरी टेल्स. इसमें उसने प्रोलॉग दिया, टेल्स दी, आगे उनके जो कैरेक्टर्स को बयान किया, तो काफी ज्यादा मजा आया. इसमें कुछ कॉमिक एलिमेंट थे, कुछ सटायर था, कुछ ह्यूमरस सिचुएशन थी. तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि he is called and still is called, not was called. उसको अभी भी कहा जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. अगर हम अल्टरनेटिवली बात करें तो उसको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है, क्योंकि
एज ऑफ चासर द पोएट वाज बॉर्न, ऐसे कह सकते हैं। तो ये एक पहला बंदा था, या आप कह सकते हैं ये पहला शायर था, या आप कह सकते हैं ये पहला पोएट था जिसको वेस्टमिनिस्टर अबे में दफन किया गया। चासर ने फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर के नाम को भी काफी फेमस किया, मींस इन नामों से भी वो काफी ज्यादा मशहूर हुआ। उसने एक साइंटिफिक जो है ट्रीटाइज कंपोज की थी, एक रसाला बनाया था जिसका नाम था अ ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब। वो अपने 10 साल के बच्चे के लिए बनाया था जिसका नाम लेविस था। उसने अपना करियर जो बनाया, शुरू किया, वो सिविल सर्विस से शुरू किया। उसमें वो बैरोक्रेट भी रहा, कॉटियर भी रहा और डिप्लोमेटिक भी रहा, और डिप्लोमेट भी बना और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी वो हिस्सा रहा। चासर चासर के बहुत सारे वर्क हैं जिससे उसको जाना जाता है, जैसे कि द बुक ऑफ डचेस है, द हाउस ऑफ फेम है, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है, और हमने अभी जो बात की थी, जो लास्ट वाला वर्क इसका यहाँ पे है, वो है ट्रोलिस और क्रिसाइड। तो इससे भी हम इसको काफी ज्यादा जो है मतलब जानते हैं, ये भी काफी ज्यादा मशहूर है, राइट। लेकिन इससे काफी ज्यादा जो मशहूर है वो है कैंटरबरी टेल। तो कैंटरबरी टेल काफी ज्यादा मशहूर है। नेक्स्ट वी हैव हियर, हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आज इसकी पोम, द बुक ऑफ डचेस। This is the second topic. We're going to cover it and the book of Duchess. We're going to introduce the poet. Poet was Geoffrey Chaucer. And here we have the introduction of the poem. It is also known as the Dream of Chaucer. It is the first major long poem published by the Geoffrey Chaucer, and it was written some time between 1368 and 1372. It is believed to have been written to commemorate Duchess Blanche of Lancaster, the first wife of John Gort, who was third son of King Edward III. Here we have a question. Who was John of Gort? John of Gort was a baron and at some point a brother-in-law to Chaucer. The poem is believed to have been commissioned by him. The most obvious clue to this is the name of the deceased woman of the poem, which is Lady White, as the name Blanche. Blanche means white. The next we have here poem of the poem, right? The poem is mostly written in a syllabic form. Chaucer adapted from the French called French octosyllabic verse, which means there are 8 syllables in a line and every 2 lines are couplets rhyme. This was a form often used for the long narrative poems or the poems that tell a story. There is a short poem within the poem which was written in royal rhyme, a 7-syllable rhyming from which Chaucer invented. Let's have here the commentary, the Book of Duchess. You call it the first poem of the Chaucer, और इसको हम ड्रीम ऑफ चासर भी कहते हैं, जिसको पब्लिश किया गया था कब 1368 से लेकर 1372, मींस यहाँ पे 4 सालों में उसने इस पहली पोम को लिखा। कितने सालों में? 4 सालों में। We can have here question.
कितने सालों में चासर ने द बुक ऑफ डचेस लिखी? तो उसने द बुक ऑफ डचेस जो है वो 4 सालों में लिखी। और यहां पे कहा जाता है कि ये जॉन ऑफ गॉड जो किंग एडवर्ड थर्ड का चौथा बेटा था, उसकी वाइफ जब मर गई, जिसका नाम ब्लंच था, जो लैनकास्टर की थी, तो उसकी याद में इसने लिखा। अब जॉन ऑफ गॉड कौन? क्वेश्चन, हु इज द जॉन ऑफ गॉड? वो पैट्रॉन था। पैट्रॉन मींस इसका फ्रेंड था, इसका दोस्त था, इसका सरपरस्त था, इसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे। और कहा जाता है सम पॉइंट में या किसी हद तक वो उसका ब्रदर इन लॉ भी था, मींस उसका साला था, राइट? मींस ब्रदर इन लॉ का मतलब यहाँ पे दो होता है। मींस जॉन ऑफ गॉड की बीवी और चासर की बीवी आपस में क्या थे? बहनें थी। इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं ब्रदर इन लॉ। तो ये इसी के एवज में लिखी गई है, राइट? और इसमें जो हमें क्लू मिलता है वो मिलता है ब्लैंच का, जिसका मतलब होता है व्हाइट, और व्हाइट लेडी वही थी। अब इस पोम को किस शक्ल में लिखा गया? पोम में क्या थी, कैसे लिखा गया, आइए हम देखते हैं। इस पोम को लिखा गया सिलेबिक में। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज सिलेबिक? सिलेबिक यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है, यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जिसमें एक वावल साउंड होती है विद या विदाउट कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड तो इसमें होती है कभी कभार इसमें कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होती है, जो यानी कि होल या पार्ट ऑफ वर्ड जो है वो बनाता है, उसको हम सिलेबल कह सकते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि व्हाट इज सिलेबल और व्हाट इज सिलेबिक। सिलेबिक का मतलब होता है यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, टू प्रोनाउंस, लेकिन इसमें दो वावल होते हैं, राइट? जैसे वाटर है ना, अब इसमें वाटर में दो वावल्स हैं, राइट? वन वावल साउंड होती है, सॉरी, वाटर में हमारे पास दो सिलेबल हैं, लेकिन इसमें वावल साउंड, एक ही वावल साउंड के दो सिलेबल हैं। तो इसको जो है फ्रेंच ऑक्टोसिलेबिक वर्ड से लिया गया था। फ्रेंच ऑक्टोसिलेबस क्या होता है? ऑक्टोसिलेबस का मतलब होता है इसमें दो आयम्बिक, और इसको कह सकते हैं आप ट्रू केक टेट्रा मीटर लाइन होती है। अब ट्रू केक ट्रू की से लिखा है, तो ट्रू की क्या है? वो होता है एक मैट्रिकल फुट जिसमें स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, और वो फॉलोड बाय सिलेबल, ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से उसको फॉलो किया जाता है। तो उसको हम जो है वो ट्रू के बोलते हैं, राइट? उसके बाद इसमें एक और वर्ड आया जो आप नहीं समझते हो, वो है मैट्रिकल फुट। सो व्हाट इज मैट्रिकल फुट? मैट्रिकल फुट मींस बेसिक रिपेयरिंग रिदम, और इसमें क्या होता है? दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लाइन ऑफ वर्ड्स, राइट? तो इसमें जो है ये एक नैरेटिव पोम थी। सो व्हाट इज नैरेटिव पोम? यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि पोम दैट टेल्स अ स्टोरी, जो हमें स्टोरी बोलती है, उसको हम नैरेटिव पोम कह सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक पोम के अंदर दूसरी शॉर्ट पोम, जैसे कि जब वो 7 साल 8 साल से सोया नहीं होता है, तो वो एक बुक लाता है, द बुक ऑफ रोमांस। तो मीन्स उस वो तो पोम है ही, लेकिन उसके बीच के अंदर का पोम ये है कि जब उसको ख्वाब आ जाता है तो वो छोटी सी उस मतलब ख्वाब की भी जो है वर्सेस बना लेता है और उसको भी पोम बना लेता है। एक वो कि जो इसने बुक ऑफ रोमांस से लिया हुआ मटेरियल है उसकी वर्स बना लेता है, दूसरा वो जो खुद अपना ख्वाब देखता है फिर उसका भी वर्स बना लेता है। तो उसमें जो है वो रॉयल राइम का इस्तेमाल करता है,
जो 7 सिलेबल होते हैं। राइमिंग फॉर्म है वो जो चासर ने ही इन्वेंट की हुई, चासर ने ही वो ली हुई। अब यहाँ पे एक है कि रॉयल राइम क्या है। रॉयल राइम में 7 लाइंस होती है। यूजुअली इसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है, और ये जो राइम स्कीम इसकी है वो है ए बी बी सी सी, राइट। तो इसकी राइम स्कीम भी मैंने आपको बोल दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। So we come to the summary of the book of Duchess. It is more important to understand. अगर आपको समझ नहीं आती है, you can also comment, और मैं फिर इसको पूरा हिंदी या उर्दू में समझाने की कोशिश करूंगा अपने फेस कैम से, राइट। तो यहाँ पे the book of Duchess begins with a man who can't sleep. His habitudes and fantasies are so disturbing that he hasn't slept for 8 years. He fears he will die for his insomnia. So he asks someone to bring him a book to read, which he calls a book of romance. He says that it's better to read than to play chess to try to fall asleep. He reads about a fictional king, right? CX, who sets sail for an adventure at sea and is drawn in a storm. The queen, LC1, waits for him to return, and when he doesn't come, she grieves inconsolably. She begs the goddess Juno to let her see to know in a dream what happened to her husband. She vows to give her total devotion to the goddess if she grants her wish. Let's have a summary. The Book of Dishes शुरू होती है। एक आदमी होता है जो सो नहीं पाता है, वो सोने की कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता है। उसको बहुत सारे ख्याल आते हैं जो उसको डिस्टर्ब करते हैं, और वो 8 साल से सोया नहीं होता, राइट। उसको डर है वो कहीं मर ना जाए बगैर नींद से। जो सोता नहीं है उसको इंग्लिश में इंसोम्निया बोलते हैं। इंसोम्निया का मतलब होता है जो सो नहीं सकता है, राइट, जिसको नींद नहीं आती। तो वही इंसोम्निया से कहीं मर ना जाए, उसको ये डर है। तो वो अपने नौकर को बुलाता है और कहता है कि किताब लाओ, और उस किताब का नाम होता है द बुक ऑफ रोमांस। और वो लाता है, यानी कि वो बुक लाता है, वो किताब लाता है, और ये यहाँ पे कहता है कि शतरंज खेलने से बेहतर है कि बुक पढ़कर नींद आ जाए। वो किताब को पढ़ता है। वो एक दास्तानी जो है वो दास्तान होती है या दास्तानी कहानी होती है, मीन्स कहानी, एक कहानी होती है, वो फिक्शनल आप कह सकते हैं उसको, जो बादशाह के बारे में होती है, जिसका नाम जो है क्या होता है CX। इसकी प्रोनाउंसिएशन है CX, ये कैरेक्टर है। तो वो समंदर के सैर के लिए चला जाता है। मैंने मीन्स अपने आप को जोखिम में डालते हुए समंदर की सैर के लिए चला जाता है, और स्टॉर्म आ जाता है। स्टॉर्म मीन्स तूफान आ जाता है, और वो उसमें डूब जाता है। जो उसकी बीवी मीन्स क्वीन वो होती है, जिसका नाम क्या होता है LC1। LC1 क्या करती है, उसके लिए इंतजार करती है, और जब वो नहीं आता है तो वो अपने गम से गमगीन होती है, राइट। ग्रीव्स का मतलब होता है गम, और इन सोल एबल का मतलब होता है गमगीन। मीन्स ये यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है एज अ एडवर्ब। अब वो अपने खुदा से दुआ मांगती है, इल्तिजा करती है,
और वो ख्वाब में देखे कि उसके हस्बैंड को, उसके खावंद को, उसके शरीके हयात को क्या हुआ है। वो कसम देती है अपने गॉडेस को कि अगर उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो वो उसको टोटल डिवोशन दे, मीन्स पूरी तवज्जो दे, राइट। So next we have here the goddess causes Alcimon fall into a deep sleep and summons Morpheus, the god of sleep, to go find the king on the ocean floor, inhabit his body, and make him appear to Alcimon in a dream so that she sees that he has drowned. He does so, and Alcimon dies of grief 3 days later. The narrator or the speaker of the poem figures that if a god helps Alcimon fall asleep and dream, maybe a god would do the same for him. He set up to the gods that he will reward them with the most uh, sorry with the most luxurious with the most luxurious with the most luxurious gold-padded bedchamber, with the bed of the finest stone, with the covers embroidered with the finest threads of pure gold. If they will help him sleep, he immediately fell asleep and had a vivid dream. First, the narrator hears birds singing the sweetest symphony he has ever heard. He is lying in a room whose walls have pictures of all the characters of the great European epic poem. Let's have a commentary. जो गॉडेस है वो एल्सीवन को जो है वो नींद में डाल देती है। वो मॉर्फियस को जो स्लीप का गॉड होता है उसको बुलाता है और उसको बोलता है कि जाओ ओशन के फ्लोर में, वहाँ बाड़ी पड़ी हुई है, आप उसका मायना करो और एल्सीवन को बोल दो कि क्या हुआ है उसके खामन को। और वो जब देखती है कि उसका खामन जो है वो डूब गया है, और यानी कि ये जब मॉर्फियस ये करता है, पूरी इंफॉर्मेशन लाता है उसके खामन के डूबने की और वो इसको देता है, तो एल्सीवन जो है वो भी मर जाती है गम से उस ख्वाब को देखने के बाद। यानी 3 दिन के बाद, यानी ख्वाब देखने के 3 दिन के बाद वो भी दुनिया से चल बसती है, मीन्स मर जाती है। यहाँ पे जो नैरेटर है, जो स्पीकर ऑफ द पोएम है, वो भी अपने खुदा से ख्वाहिश करता है कि उसको भी नींद आ जाए और वो भी ख्वाब देखे। कहता है कि अगर खुदा ऐसा करता है, ऐसा ही करता कि मुझे भी ख्वाब देता और मैं भी सो जाता है। वो एक प्ली का मतलब होता है एक उजुर पेश करता है, मान लो एक रिक्वेस्ट करता है अपने खुदा से कि अगर वो भी सो जाता है तो वो इसको एक लक्सरियस जो है वो गोल्ड पेंटेड बेड चैम्बर देगा और बेड होगा, उसके ऊपर जो है अच्छी सी रजाई तलाई होगी जिसका कवर जो है बना हुआ होगा यानी गोल्ड के थ्रेड से। थ्रेड मीन्स यहाँ पे धागे बोलते हैं, तो यानी कि उनकी जो एम्ब्रॉयडरी होगी वो उसकी बनी हुई होगी।
मीन्स जो उसकी दस्तकारी होगी वो गोल्ड की बनी हुई होगी, और वो भी मतलब उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है और उसको एक ख्वाब आ जाता है, एक साफ सा ख्वाब। अब ख्वाब में क्या देखता है, नैरेटर जो है जब सो जाता है वो परिंदों की आवाज को सुनता है, परिंदों के गाने की आवाज को सुनता है, जो काफी स्वीटेस्ट सिम्फोनी होती है, जो कभी भी उसने नहीं सुनी है। एक नया वर्ड है आपके लिए, सिम्फोनी। सिम्फोनी का मतलब होता है हमसाज, मीन्स उसमें इतना साज होता है, उसमें आवाज साज होता है जो कभी भी उसने नहीं सुना हुआ होता है। और वो कमरे में पड़ा हुआ होता है, जिस कमरे के दीवारों पे पिक्चर्स लगी हुई होते हैं यूरोपियन एपिक पॉम्स की, राइट। He hears a hunt, leaves the chamber, inquires who is hunting. The hunt is revealed to be that of Octavian. The dogs are released and the hunt begins, leaving behind the point and a small dog that the point follows into the forest. The point stumbles upon a clearing and finds a knight dressed in a black composing a song for the death of his lady. The point asks the knight the nature of his grief. The knight replies that he had played a game of chess with Fortuna and lost his queen and was checkmated. The point takes the message literally and begs the Black Knight not to come upset over a game of chess. Let's have a camera. अब यहाँ पे वो एक हंट सुनता है। हंट का क्या मतलब होता है, एक आवाज, शिकारी की आवाज सुनता है, राइट। और वो अपने चैम्बर को छोड़ता है, इसके बारे में पूछताछ करता है कि ये मतलब आवाज कौन कर रहा है, ये मतलब शिकारी की आवाज कहाँ से आ रही है। और जो शिकार है वो यहाँ पे जाहिर होता है और उसका जो मतलब नाम होता है वो ऑक्टावियन होता है और शिकारी का नाम। और वो उसके साथ जो है वो कुत्ते भी होते हैं और जो शिकार होता है वो शुरू करता है आगे चलना। और ये पॉइंट जो है ये इसके पीछे जाता है, छोटे कुत्ते भी होते हैं और ये जो पॉइंट है मतलब उनके पीछे जाता है फॉरेस्ट में, मीन्स जंगल में वो आगे जा रहे होते हैं तो ये जंगल में उनके पीछे जा रहा होता है। अब क्या करता है यहाँ पे पॉइंट, जो पॉइंट है वो यहाँ पे गलती कर जाता है और नाइट के ड्रेस यानी कि जो पॉइंट है वो मतलब एक गलती करता है, रुक जाता है या ठहरता है उस जगह पे, मीन्स एक साफ जगह पे, एक क्लियरिंग प्लेस आप कह सकते हैं यहाँ पे, वहां पे। और उसको नजर आता है वहां पे ड्रेस, यानी कि नाइट नजर आता है जो ब्लैक ड्रेस में होता है और वो एक सॉन्ग जो है वो कंपोज कर रहा होता है अपने लेडी के लिए, अपनी औरत के लिए। I will try my best to give the comprehensive detail in Urdu. Means here the point gonna stumble, means point यहाँ पे रुकता है, रुकने के बाद उसको एक नाइट, पॉइंट यहाँ पे रुकता है, रुकने के बाद उसको एक नाइट काले कपड़ों में नजर आता है जो एक गाना गा रहा होता है अपनी औरत के लिए जो मर चुकी होती है। समझ गए? ये पॉइंट जो है वो क्या करता है यहाँ पे, उस नाइट से पूछता है कि वो गमगीन क्यों है। नाइट यहाँ पे जवाब देता है कि उसने फॉर्चूना जो है उसके साथ गेम ऑफ चेस खेला था और उसने जब गेम ऑफ चेस उसके साथ खेला उसकी जो रानी है वो खो गई, मीन्स मर गई।
यानी यहाँ पे एक वर्ड है चेक मैरिड। चेक मैरिड का मतलब होता है कष्ट मार, मीन्स वो मर गई। तो पोइट यहाँ पे एक लिटरेरी मैसेज, एक अदब वाला मैसेज पास करता है, देता है, और उसको इल्तिजा करता है, मीन्स किसको, ब्लैक नाइट को इल्तिजा करता है कि वो अपसेट ना हो, मीन्स वो गमगीन ना हो, उदास ना हो, यानी शतरंज की गेम खेलने पे वो उदास ना हो। नेक्स्ट वी हैव हियर, the knight begins the story of his life, reporting that for his entire life he had served love, but that he had waited to set his heart on a woman for many years until he met one lady who surpassed all others. The knight speaks of her surpassing beauty and temperament and reveals that her name was Good, pure white. The points still not understanding the metaphorical chess game asks the Black Knight to finish the story and explain what was lost. The knight tells the story of his humbling declaration of love and long time it took for the love to be reciprocated, and that they were in a perfect harmony for many years. Still, the narrator doesn't understand and asks whereabouts of White. The knight finally blurts out that White is dead. Let's have a commentary. नाइट यहाँ पे अपनी स्टोरी स्टार्ट करता था, अपनी जिंदगी की स्टोरी, और बोलता है उसको है कि उसने पूरी जिंदगी में प्यार किया और उसने इंतजार किया कि उसका दिल किसी औरत पे आ जाए। बहुत सालों भर उसने इंतजार किया कि उसका दिल किसी औरत पे आ जाए। आखिरकार वो एक औरत से मिलता है जो उसको क्या करती है, छोड़ के चली जाती है। सरपास का मतलब होता है, सरपास का मतलब होता है छोड़ के चले जाना। और वो नाइट जो है उसके छोड़ने की जो मतलब खूबसूरती है और उसका जो तबीयत है, उसकी जो मतलब टेम्परामेंट है, मिजाज है, उसकी बात करता है और बोलता है कि उसका नाम जो था वो था गुड हियर वाइट। यहाँ पे जो पॉइंट है वो अभी भी ये समझ नहीं पाता है, जो उसने मेटाफोरिकल चेस गेम की बात की हुई, वो उससे फिर पूछता है ब्लैक नाइट से कि वो अपनी स्टोरी को जल्दी से खत्म करे और बोले कि क्या घूम गया है, मतलब घूमा क्या है। तो यहाँ पे मेटाफोरिकल चेस क्या है, मेटाफोर का मतलब होता है कि कोई वर्ड कुछ हो और उस वर्ड का इस्तेमाल किसी और के लिए इस्तेमाल हो। तो इसने चेस गेम को डेथ से जो है वो मतलब इसको कंपेयर किया है। मीन्स यहाँ मेटाफोरी का मतलब होता है टू कंपेयर वन थिंग फ्रॉम एन अदर। यहाँ में नाइट इसको स्टोरी बोलता है अपने इसकी मतलब अपने जिंदगी की। फ्यूमलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज की तलाश में इधर उधर हाथ मारना। मीन्स जो इसको तलाश थी डिक्लेरेशन ऑफ लव की, तो उसकी वो स्टोरी बयान करता है और वो ये कहता है कि बहुत देर तक उसने इसको प्यार तो दिया और वो बहुत देर तक एक मुकम्मल मतलब प्रॉस्पेरिटी में थे, मुकम्मल एक एटमॉस्फेयर था प्यार करने का उनके पास, सॉरी। लेकिन अब नैरेटर भी ये अंडरस्टैंड नहीं करता है और उसको पूछता है कि वो जो वाइट है वो कहाँ है। तो नाइट यहाँ पे फाइनली ब्लॉट करता है। ब्लॉट का मतलब होता है कि
कि वाइट इज डेड, जो वाइट वुमेन थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। The poet realizes what has occurred as the hunt ends, and the poet awakes with his book still in his hand. He reflects on the dreams and decides that his dream is so wonderful that it should be set into rhymes. तो यहाँ पे पॉइंट ये महसूस करता है और वहां पे जब वो उठ जाता है तो किताब उसके हाथ में होती है और वो जो हंट वहां पे शिकारी वहां पे होता है वो तो वहां होता नहीं है और उसका जो ड्रीम है वो उस पे थोड़ी तवज्जो देता है और ये फैसला करता है कि इस ड्रीम को बहुत ही खूबसूरत बनाकर इसको राइम्स में सेट किया जाए, मीन्स इस पे पोएट्री लिखी जाए। सारा जो क्रक्स था वो यही था कि वो एक ख्वाब देखता है, ख्वाब में एक हंट को देखता है, शिकारी को देखता है, उसके साथ में बहुत सारे कुत्ते होते हैं और वो जंगल की तरफ दे चला जाता है और इवन के स्मॉल डॉग भी वहां पे होते हैं, वो जंगल की तरफ लेके जाता है और वो उसका पेशा करता है। जंगल में वो एक जगह पे ठहरता है जहां पे उसको ब्लैक नाइट नजर आता है ब्लैक ड्रेस में और वो एक गाना गा रहा होता है और गाने में क्या होता है, गाने में गम होता है और वो उसको पूछता है कि आप ये गमगीन गाना क्यों गा रहे हो। वो ये बोलता है कि मैंने गेम ऑफ चेस खेली थी फॉर्च्यूना के साथ, तो उसके इवज में मेरी जो क्वीन है वो मुझसे लॉस हो गई, लेकिन पोएट को समझ नहीं आती है, वो इससे डिटेल मांगता है। आखिरकार वो इसको बोलता है कि मसला क्या था और इस तरह से ये ख्वाब खत्म हो जाता है, वो ऊपर उठता है, फिर इसको राइम्स में कर देता है। That was all about. I still say कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका सेकंड पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो एक बार मैं फिर आपसे कह दूं कि एक ख्वाब होता है, ख्वाब में क्या होता है, एक शिकारी होता है, शिकारी क्या करता है, वो जंगल की तरफ जाता है और यहाँ पे जो पोएट है वो कहाँ होता है, वो एक बैड चैम्बर में होता है, सोया हुआ होता है, वहां पे परिंदे होते हैं जो आवाजें कर रहे होते हैं और आवाजें उनकी जो है वो एक सिम्फोनियम की तरह होती है, मीन्स एक गाने की तरह होती है, गाना होता है वो। तो उस गाने को जब पोएट सुनता है तो उसने वो वाला गाना कभी नहीं सुना हुआ होता है, उसको बहुत मजा आता है, लेकिन एकदम से शिकारी आ जाता है, शिकारी आने की आवाज आ जाती है, वो ऊपर उठता है, शिकारी का पीछा करता है, वो जंगल की तरफ जाता है तो शिकारी वहां होता है। शिकारी जब वहां होता है तो वो किस ड्रेस में होता है, वो ब्लैक ड्रेस में होता है और वो क्या कर रहा होता है, वो एक सॉन्ग गा रहा होता है और वो सॉन्ग क्या होता है, वो एक गमगीन वाला सॉन्ग होता है, मीन्स जिसमें गम होता है। और जब चासर उससे पूछता है ये सॉन्ग आप कंपोज क्यों कर रहे होते हैं, तो वो ये बोलता है कि आई हैव प्लेड अ गेम चेस विद फॉर्च्यूना एंड लॉस्ट माय क्वीन। इट इज अ commemoration for my queen। तो ये commemoration होता है और उसको बोलता है कि उसको समझ अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता है जो उसकी मेटाफोरिकल लैंग्वेज है कि गेम ऑफ चेस। तो आखिरकार उसको समझ आ जाती है कि व्हाट इज द गेम ऑफ चेस और लास्ट पे वो क्वेश्चन करता है वेयर इज दैट व्हाइट लेडी, कहता है व्हाइट लेडी इज नो मोर, व्हाइट लेडी इज नो मोर। तो यहां से ये खत्म हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं और अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो मैं एक फेस कैम की वीडियो अल्टरनेटिवली इन इंग्लिश एंड उर्दू आपके लिए बना सकता हूँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट, राइट। सो थैंक यू।